Very good evening once again, students. Today I am going to discuss with you valence bond theory. This theory is based on the knowledge of atomic orbitals and the overlap criteria of atomic orbitals and principle of variation and superposition. Let us consider the formation of hydrogen molecule, which is the simplest of all the molecules. If you consider two hydrogen atoms A and B approaching each other, having nuclei Na and Nb, electron Ea and Eb. When two atoms are at a large distance from each other, there is no interaction between them. As two atoms approach each other, new attractive and repulsive forces will operate. Let's see how it is possible. You can see this diagram first. If you talk about hydrogen atom, this is hydrogen nucleus. First hydrogen nucleus, second. If you observe, hydrogen exists in this way. This is the first hydrogen atom, this is the second hydrogen atom. तो इस hydrogen atom में क्या हो रहा है? This is electron, right? This is the first electron of this hydrogen and this is the electron for second hydrogen. And if you find the old forces, you can see here the dotted line is showing the old forces. So the old forces are observed here, which are already present in the atom, in this and also in it. But the new forces, नाउ आप देख सकते हो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस वाले हाइड्रोजन एटम का है ए का, लेकिन ये अट्रैक्ट किसकी तरफ हो रहा है? एच बी की तरफ. सेम वे ये जो ई है, ई बी है, ये इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन का है लेकिन अट्रैक्ट किसकी तरफ हो रहा है? एच ए न्यूक्लियस की तरफ. सो ये न्यू फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है. दो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आपको मिल रहे हैं. अब फोर्स ऑफ रिपल्शन देखो इसमें कितने हैं. जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है, एक तो दोनों इलेक्ट्रॉन का आपस में रिपल्शन है, दोनों न्यूक्लियस का भी आपस में रिपल्शन है. तो जो अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं दे टेंड टू ब्रिंग द टू एटम क्लोज टू ईच अदर, वेयर एज रिपल्सिव फोर्सेज टेंड टू पुश देम अपार्ट. नाउ वी हैव टू सी कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर कितने अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं और कितने रिपल्सिव फोर्सेज हैं. अगर ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है इसका मतलब ये है कि इसमें अट्रैक्टिव फोर्सेज ज़्यादा होने चाहिए और रिपल्सिव फोर्सेज लेस होने चाहिए, राइट? So if you will find it, you will see in case of this repulsive forces are less but attractive forces are more. So that's why what will happen? The existence of hydrogen molecule will be there. On the other hand, if you talk about helium atom, it does not exist. Simple answer of helium atom is this. Why it does not exist? Because in this case repulsive forces will be more and attractive forces will be less. So existence of this molecule is not found at all. Now what is orbital overlap concept? Partial merging of atomic orbitals is called orbital overlap, and which result in the pairing of the electrons. The extent of overlap decide the strength of covalent bond. जितना ज़्यादा ओवरलैप होगा उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा. सो फॉर्मेशन जो होती है कोवलेंट बॉन्ड की दो एटम्स के अंदर, वो रिजल्ट होती है बाय पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल हैविंग ऑपोजिट स्पिन्स. अब इसका क्या मतलब है? अब इसके हम एग्जांपल्स करेंगे जहाँ पे आपको समझ आएगा ऑर्बिटल ओवरलैप क्या कॉन्सेप्ट है. अगर आप यहाँ देखो, यू विल बी हैविंग टू टाइप्स, three types of overlapping: positive, negative and zero. When two atoms come close to each other, there is overlapping of atomic orbitals and various arrangement of s and p orbital resulting in positive, negative and zero overlap are depicted in this figure. You can see here positive. Can you see the signs? Positive overlap, head to head overlapping is there. दिस इज़ वंस अगेन पी एंड एस ऑर्बिटल ओवरलैपिंग. ये जो ऑर्बिटल्स हैं इनकी स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस कर चुके हैं. पॉजिटिव ओवरलैप, दिस इज़ साइड वाइज ओवरलैप. ये साइड वाइज है और ये हेड टू हेड ओवरलैप है ऊपर वाली, राइट? ये भी क्या है? साइड वाइज है. आप इसको भी चेक कर सकते हैं. ये भी हेड टू हेड है लेकिन इसमें नेगेटिव ओवरलैपिंग हो रही है. ये भी नेगेटिव है. आप इसमें साइंस दे सकते हैं जो वो नेगेटिव और पॉजिटिव. ये चार्जेस नहीं हैं, ये सिर्फ कि कितने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी वहाँ पे पॉसिबल हो सकती है उसको डिपिक्ट करता है. उसके बाद ये भी आप देख सकते हैं नेगेटिव ओवरलैपिंग है एंड ज़ीरो ओवरलैपिंग, मतलब इनमें ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं हो सकती है. ओके. After this, hybridization concept is there. According to Pauling, the atomic orbitals combine to form new set of orbital, जिनको हम hybrid orbitals कहते हैं. Suppose ये दो orbitals हैं,
ये आपस में ओवरलैप करेंगे तो इससे एक न्यू ऑर्बिटल बनेगा, उसको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं. हाइब्रिडाइजेशन इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज so as to redistribute their energy resulting in the formation of new set of orbitals. मीन्स ऑलरेडी जो ऑर्बिटल एग्जिस्ट कर रहे हैं उनकी जब ओवरलैपिंग होगी तो उनकी इंटरमिक्सिंग होगी एनर्जीज़ की, जिसके एज अ रिजल्ट ऑफ विच न्यू ऑर्बिटल्स बनेंगे. ठीक है, तो उनकी अपनी एनर्जी होगी, पर वो जो एनर्जी होगी जो एक्चुअल ऑर्बिटल्स हैं उनके इक्वल और उनकी शेप के इक्वल होगी. सो फीचर्स क्या हैं हाइब्रिडाइजेशन के? नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, and the hybrid orbitals are always equivalent in energy and shape. They are more effective in forming stable bonds. What important conditions for hybridization? Orbital present in the valence shell of the atom are hybridized. Means only the valence shell will be hybridized. Orbital undergoing hybridization should have almost equal energy. Promotion of electron is not essential condition prior to hybridization. Half-filled or even-filled orbitals of valence shell take part in hybridization. Now I am going to discuss with you what is sp hybridization, right? It involves the mixing of, as indicates, s and p orbitals. It is 1s and 1p. It is 1s and it is 1p, and formation of sp hybrid orbital in which 50% s character will be there and 50% p character will be there. Such a molecule possesses linear geometry and is known as diagonal hybridization. And if I take the example of sp hybridization, then BeCl2 is the best example. As you know, beryllium atomic number is 4, configuration is 1s2 2s2, and valence shell 2s2 configuration is there, and vacant, you know, after this there will be 2p orbital, right? So in beryllium, one of the 2s orbital excite to vacant 2p orbital to account for divalency, thus one 2s orbital and one 2p orbital hybridized to form. मतलब इसमें से देखो क्या होगा, ये 2s2 में से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो p में चला जाएगा, और अब आपके पास जो कॉन्फ़िगरेशन आएगी वो 2s1 और 2p1 हो जाएगी हाइब्रिड एक्साइटेड स्टेट के अंदर. तो ये s और p ऑर्बिटल जो हैं वो हाइब्रिडाइज करके sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे एंड ओरिएंटेड इन ऑपोजिट डायरेक्शन फॉर्मिंग एन एंगल ऑफ 180 डिग्री. लेट्स सी हाउ इट इज़ पॉसिबल. आप ये देख सकते हो, ये देखो, दिस इज़ s ऑर्बिटल, दिस इज़ p ऑर्बिटल. ठीक है, अब जब ये हाइब्रिडाइज करते हैं, एक तो इनकी लीनियर ज्योमेट्री होगी, 180 डिग्री का एंगल होगा, और आप देख भी सकते हो ये जैसे BeCl2 है तो क्लोरीन की अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देखते हो 17 है, तो उसका जो आउटर मोस्ट शेल आएगा 1s2 2s2 2p6, ठीक है, 3s2 देन 3p, 6 4 10 हो गए, 10 2 12, 12 और 5 17. मतलब इसका p ऑर्बिटल अवेलेबल है ओवरलैपिंग के लिए, इसलिए आपने p ऑर्बिटल बनाया क्लोरीन का. और जो बेरिलियम है उसका आपने अभी देखा ही था कौन सा ऑर्बिटल था, बेरिलियम का 2s2p, 1s2 2s2, राइट. तो उसके अंदर जो ऑलरेडी जो s और p की हाइब्रिडाइजेशन तो हो ही रखी है, ठीक है, वो मिक्स्ड हैं. तो जब ये मिक्स होके उसके साथ जब बॉन्डिंग करनी है बेरिलियम के साथ, तो हेड टू हेड ओवरलैप हो रही है, जिससे सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है. तो दिस इज़ BeCl2, ठीक है, दिस इज़ sp हाइब्रिडाइजेशन. अगर हम नेक्स्ट देखें sp2, ये साफ इंडिकेट कर रहा है कि 1 s ऑर्बिटल है और 2 p ऑर्बिटल इन्वॉल्व है. और यू कैन ईजीली से कि इसकी एग्जांपल BeCl3 है. अगर फिर से आप बोरोन को देखो, एटॉमिक नंबर इसका 5 है, 1s2 2s2 2p1, तो फिर से इसमें sp ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग होगी, जिससे क्या होगा, साथ में क्लोरीन है, क्लोरीन का फिर से p ऑर्बिटल आ जाएगा. अगर आप वैलेंस शेल को चेक करते हो तो उनकी ओवरलैपिंग होगी इस तरीके से कुछ. आप ध्यान से देखो इसको, एक तो s ऑर्बिटल, ठीक है, एक p y एंड p z ऑर्बिटल है. तो आप देख सकते हो sp ऑर्बिटल तो हो गए हैं इसके बोरोन के जो इंटरमिक्स्ड हैं, ठीक है. तो ये जो है sp ऑर्बिटल इंटरमिक्सिंग दिखा दी, और ये क्लोरीन के हैं ऑर्बिटल्स, ठीक है. इनका हेड टू हेड ओवरलैप हो रहा है, और आप देख रहे हो कि इसका जो एंगल बनेगा वो 120 डिग्री बनेगा, एंड दिस इज़ sp2 हाइब्रिडाइजेशन. तो ऐसे ही वाटर मॉलिक्यूल ले लो आप,
ये बनाएगा 4 sp3 ऑर्बिटल, out of which 2 contain 1 electron each and other 2 contain a pair of electron. Thus 4 hybrid orbital require a tetrahedral geometry and angle will be 109 otherwise, but due to the repulsion it will become 104.5 and molecule shape will be V shaped. Same way if you go with sp3, it is also having 25% S character, 75% P character, but I will discuss sp3 hybridization in the next class. So you should all familiar with what is sp, sp2, sp3 hybridization एंड बेटा आपने को रिलेट करते जाना है. जैसे अभी तक आपने क्या क्या पढ़ रखा है, आपने सबसे पहले पढ़ी है वेलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, उसके अकॉर्डिंग आपने सारी स्ट्रक्चर्स बनाई, बेस तो वही चलता जा रहा है. लेकिन आगे क्या हो रहा है, आगे क्या हो रहा है, उसमें वेरिएशंस आ रही हैं. फिर आपने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी है, फिर अब आप आगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी पढ़ोगे. तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग आप ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग पढ़ रहे हो, और ओवरलैपिंग की वजह से हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आ रहा है. उससे स्ट्रक्चर कैसे बनेगी. जब भी आपको कोई क्वेश्चन आता है और उसमें पूछा जाता है कि शेप ऑफ मॉलिक्यूल क्या होगी, तो उसमें हो सकता है आपको साथ में ये भी पूछा जाए ऑन बिहाफ ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ऑन बिहाफ ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. तो आपने ये ध्यान में रखना है कि उसकी जो शेप है उसके अकॉर्डिंग ही ड्रॉ करोगे. थैंक यू सो मच.